माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एक्सरसाइज 7.2 जो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यहां पे हमें गिवन जो फिगर है दैट इज ए रेक्टेंगल। ये क्वाड्रेटर ए बी सी डी गिवन ए बी सी डी, it is a rectangle. This figure is rectangle. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. पहले क्या है? P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of BC. R is the midpoint of CD या DC भी हम कह सकते हैं, and S is the midpoint of DA. S. We have given a rectangle ABCD. हमें given क्या लिखना है? Given a rectangle ABCD. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively. It is given. It is given. Now what we have to prove here? Show that the quadrilateral PQRS, जब हम ये PQ ज्वाइन करेंगे, QR and RS is or PS, we have to prove here this quadrilateral PQRS. PQRS is a rhombus. Is a rhombus. ये कैसे हम प्रूव करेंगे? क्या पहले क्या गिवन लिखना है? फिर से मैं रिपीट करूंगा। गिवन a rectangle ABCD. P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD respectively. It is given. After this, to prove quadrilateral PQRS is a rhombus. मैं ये to prove मैं लिखूंगा यहाँ पे। To prove quadrilateral PQRS is a rhombus. We have to show here this quadrilateral is a rhombus. Now we will here construct what construction? Join this AC. हम AC को ज्वाइन करेंगे, ये जो डायगोनल है, ज्वाइन AC. इसके बाद प्रूफ देखो कैसे करेंगे हम. We will take this triangle first. Triangle ABC, जिसका एक साइड AB, BC and AC. These are the three sides of this triangle. In triangle ABC, पूरा ABC ऐसे triangle. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. या आप सीधे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, P and Q are the midpoints of the sides AB and BC respectively. These are the midpoints in this triangle. Now PQ is now joined. Therefore PQ, ये जो है ना PQ, ये पैरेलल AC and PQ equal to half of AC. Name this first. मगर कैसे ये है? ये कैसे? बाय मिड पॉइंट था, बाय मिड पॉइंट था. मैंने ये बताया आपको, हमने ये किया है मिड पॉइंट थ्योरम. PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. यही तो मैंने किया. इसी तरह सिमिलरली
in triangle ACD, R and S are the midpoints of two sides CD and AD respectively. Therefore, SR parallel AC, SR equal to half of AC. मैं यहां पे similarly SR parallel AC, इसी तरह क्योंकि R and S इन ट्रायंगल, पहले ऐसे इन ट्रायंगल ACD, R and S are the midpoints of sides DC and AD respectively. Therefore, SR parallel AC, SR equal to half of AC. ये भी by midpoint था. इसी तरह मैंने यहां पे लिखा है similarly SR parallel AC and SR equal to half of AC. Name this second. ये भी by midpoint था, by midpoint था. इसी तरह मगर ट्रायंगल कौन है? ACD. ट्रायंगल तो ACD. Midpoints are R and S of these two sides. Therefore, SR parallel AC, SR equal to half of AC. From first and second we get, what we get? PQ parallel AC, SR parallel AC. यहां तो सीधे निकलेगा PQ parallel SR. मैंने ये समझाया कैसे, क्योंकि PQ parallel AC एंड SR parallel AC, ये भी parallel इसको, ये भी parallel AC को, इसका मतलब है PQ parallel SR, PQ parallel SR. इसी तरह PQ equal to half of this, SR equal to half of this. Now PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. निकला ये जो क्वाड्रेटर PQRS है ना, इसमें हमें क्या मिला? PQ is equal to SR, PQ parallel to SR. इसका मतलब है ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. मैंने ये कहा जब क्वाड्रेटर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रेटर क्या होता है? पैरेललोग्राम. यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQR, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. कैसे? Because one pair of opposite sides, parallel and equal. PQ parallel SR, PQ equal to SR. Because one pair of opposite sides are parallel and equal. This is a parallelogram. निकला हमें ये पैरेललोग्राम. इसके बाद हमें क्या ये प्रूव करना है? ये रोम्बस दिखाने. इसका मतलब है पैरेललोग्राम तो ये निकला, बिकॉज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम तो निकला बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस. अब हमें ये रोम्बस दिखानी है. इसका मतलब है ये सारे साइड्स PQ मस्ट बी इक्वल टू QR, इक्वल टू RS, इक्वल टू PS. ये चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए. ये हम कैसे करेंगे आप अच्छी तरह देखो. मैं यहां से दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा. इन ट्रायंगल PBQ, ये ट्रायंगल PBQ ऐसे, ये और इसके साथ में एंड ट्रायंगल QCR, ये ट्रायंगल. पूरा ध्यान से देखना. ये दो ट्रायंगल्स मैंने उठाए एंड ट्रायंगल QCR. देखो इसमें ये जो ट्रायंगल है ना PBQ मैंने उठाया, ये एंगल B इज इक्वल टू 90. दिस आल्सो एंगल C इज इक्वल टू 90. कैसे ये 90? बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल. ये गिवन है फिगर. ये क्या है? ये रेक्टेंगल है. इसी वजह से एंगल B भी 90, एंगल C भी, ये भी A भी 90, D भी 90. मगर हमें यहां पे ये दो जरूरत है. पहले मैं क्या लिखूंगा आप अच्छी तरह देखिए. ये जो है ना
पहले में PB इज इक्वल टू RS, PB इज इक्वल टू RS। कैसे? PB इज इक्वल टू RS, पूरा ध्यान से देखो। PB इज इक्वल टू RS कैसे? बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, opposite sides of rectangle। AB is equal to DC, opposite sides of rectangle। now P is the midpoint of AB, R is the midpoint of DC। जब ये दो बराबर है तो इसका जो हाफ हो वो भी बराबर होगा। AB is equal to CD, half of AB is equal to half of CD, because P is the midpoint of AB, R is the midpoint of DC। क्योंकि ये मिड पॉइंट दोनों है तो AB बराबर DC, तो इनका हाफ भी बराबर है, तो PB इज इक्वल टू ये इसके बराबर होगा। PB इज इक्वल टू RS। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे? ईच 90 डिग्री, बिकॉज ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए निकला, ये भी 90। तो इसके बाद ये जो है ना, ये BQ इज इक्वल टू QC, BQ इज इक्वल टू QC, ये कैसे बराबर है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना, ये Q मिड पॉइंट है BC का, इसका मतलब है BQ इज इक्वल टू QC। तो देयरफॉर ट्रायंगल PBQ congruent to triangle QCR, सॉरी B नहीं, QCR, मैंने यहां पे QCR, ये दो ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट निकले। कैसे? कौन सा रूल? साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकले तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR, PQ ये इज इक्वल टू QR, कैसे? CP/CD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब हमें PQ निकला किसके बराबर? QR के बराबर, तो इट इज ए parallelogram also। PQ opposite sides of parallelogram are equal, PQ is equal to RS and PQ is equal to QR, QR किसके बराबर है? PS के बराबर, तो इसका मतलब है सारे साइड्स आपस में इसको बराबर है। क्या लिखेंगे? या अगर ऐसे नहीं, हम अगर ये और ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू दिस, हेंस ऑल द फोर साइड्स ऑफ दिस parallelogram PQRS, because we first proved here PQRS is a parallelogram, all the four sides are equal, hence it is a rhombus। therefore PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS, because PQRS is a parallelogram, because PQRS is a parallelogram। जब इसके सारे साइड्स आपस में बराबर है तो हेंस PQRS is a rhombus। तो ये क्या निकला? rhombus, because all the four sides of this parallelogram are equal, क्योंकि first we proved this, it is a parallelogram, then we got here all the four sides are equal, hence it is a rhombus। यही आज करना था, कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। थैंक्स।